magnetic flux through a surface is the net number of magnetic field lines passing through the surface, where the surface is at right angle to magnetic field lines. Magnetic flux through a surface is the net number of magnetic field lines passing through the surface, where surface is at right angles to magnetic field lines. इसमें हमने दो टर्म्स यूज़ किए हैं, एक यूज़ किया नेट नंबर, एक यूज़ किया राइट एंगल्स। दोनों का मीनिंग क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैंने सरफेस लिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो इसमें ये जो हमने सरफेस लिया इसमें क्या आ रहा है, 100 फील्ड लाइंस राइट पे जा रही हैं, 100 फील्ड लाइंस लेफ़्ट पे जा रही हैं। इस केस में जो अगली नेट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। If I consider same surface, अब हमने एज्यूम किया 120 लाइंस राइट पे जा रही हैं, 80 लाइंस लेफ़्ट पे जा रही हैं। इसमें जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू 40। Means field lines in one direction should be more than the field lines in the opposite direction. एक हमने राइट एंगल की कंडीशन क्यों रखी, अगर कोई भी सरफेस में लेता हूँ और फील्ड लाइंस उसके पैरेलल हैं सरफेस के, तो वो उसको क्रॉस नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल एक रूम से मैंने बाहर जाना, अगर मैं डोर के पैरेलल चलूँगा, I cannot cross the room. I have to move at right angle to the door. So if field lines are parallel to the surface, the flux will be zero. So in order that flux it pass through the surface, field lines, if they are perpendicular, it contribute towards flux. So there are two conditions. One is condition of net number of field lines. Second is condition that the magnetic field is perpendicular to the surface. The point is how to calculate flux. We have a relation that magnetic field intensity is equal to net number of magnetic field lines per unit area. Now what is the net number of magnetic field lines? It is magnetic flux. Now what is the area? S. If I cross multiply the magnetic flux is magnetic field intensity into area. So there are three cases which we can consider. In case one, you have an area
and the magnetic field is actually perpendicular to the area. And in this case one, the magnetic field is uniform. Uniform magnetic field. Is perpendicular to area. This is my case one कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया के ये परपेंडिकुलर है. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी and the direction of area vector is also perpendicular to the surface. In this case, magnetic flux is given by B into S. In my case 2, if I take case 2, I have a uniform magnetic field, but the magnetic field is making an angle theta with area vector. If magnetic field is making angle theta with area vector, field can be resolved in two components, B cos theta in the direction of area vector and B sin theta is perpendicular to area vector. Now here if I calculate flux, so there are two components parallel to area vector and perpendicular. The flux is due to component which is perpendicular to area, or parallel to area vector. In my case 2, uniform magnetic field at angle theta with area vector. In this case, the flux is due to the component B cos theta only. So you can write it as dot product of B and S. So if the field is uniform in perpendicular to area vector, so B and N are in the same direction. So in this expression you put theta equal to 0, cos 0 is 1, I will get this result B into S. Then we have case 3. In case 3, you have a non-uniform magnetic field. Area placed in a non-uniform magnetic field. Area placed in non-uniform magnetic field. In this case, to calculate flux, we will take help of integration. We will divide the area into small segments. We will calculate flux through segment 1, flux through segment 2. If I divide it into small segments, how many segments are possible? Infinite. In this case, the magnetic flux is given by integral of B dot ds. So there are three cases. If the uniform field B into S, if its field is perpendicular to area vector, field making angle theta with area vector, B cos theta into S or B dot S. If field is non-uniform, it is surface integral of the magnetic field intensity. Please note down. Okay, what is the unit of magnetic flux?
इसका एक यूनिट वेबर है, ये SI यूनिट्स में। एक मैक्सवेल है, इट इज इन CGS यूनिट। जैसे 1 वेबर सिंबल WB होता है, इट इज 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस, 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। What is 1 Weber? 10⁸ Gauss centimeter square or 10⁸ Maxwell. Note down. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज अलोंग XY प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इज 4I कैप माइनस 3J कैप प्लस 10K कैप टेस्ला। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो एरिया है एस XY प्लेन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। XY प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगा? इट इज़ अलोंग Z एक्सिस, इट इज़ अलोंग Z एक्सिस। सो इसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में, 3 × 10⁻⁴ और मीटर स्क्वायर XY प्लेन। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, एरिया वेक्टर आ जाएगा 0I कैप, 0J कैप, 3 × 10⁻⁴ K कैप। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिखता हूँ, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? 4I माइनस 3J प्लस 10K कैप। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? B.S। I को I से 0 × 4 क्या आएगा? 0, 0 × 3 इज 0। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 10⁻⁻⁴, 3 10⁻³ वेबर। ये फ्लक्स आ गया। तो अब आ रहा फेरेडेज एक्सपेरिमेंट। तो जो फेरेडे का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट 1 में क्या किया उसने? ही कंसिडर्ड ए लूप विद ए गैल्वेनोमीटर अटैच्ड टू इट एंड ए बार मैग्नेट। ही नोटिस दैट व्हेन बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द लूप और इज टेकन अवे फ्रॉम द लूप, द galvanometer show some deflection. The question is why the deflection is obtained. He explained it like this: when the magnet is at a large distance from the loop, when the magnet is at a large distance from the loop, the magnetic field lines or number of field lines passing through the loop is very less, and when it come nearer to the loop, the number of field lines passing through the loop increases. So when magnet is taken towards the loop, the magnetic flux is increasing, and when magnet is taken away from the loop, magnetic flux is decreasing. He said that why EMF is set up? He gave a law: whenever there is a change in magnetic flux, induced EMF is actually set up. Please note down. Faraday considered a loop with a galvanometer attached to it. And a bar magnet. Faraday considered a loop with galvanometer attached to it and a bar magnet. He noticed that when bar magnet is taken towards the loop, or taken away from the loop, the galvanometer show
shows some deflection. The galvanometer show some deflection. Explanation he gave is when the bar magnet is taken towards a loop, the magnetic flux through the loop increases. Explanation he gave is when bar magnet is taken towards a loop, the magnetic flux through the loop increases. The magnetic flux through the loop increases. And he said, whenever there is a change in magnetic flux, induced EMF is set up. कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक लूप से चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाएगी. What is Faraday's first law of EMI? Whenever magnetic flux linked with loop or circuit changes, induced EMF is set up in loop or circuit, and it lasts so long till the change in magnetic flux is taking place. इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये मैग्नेट रेस्ट पे आ जाएगा तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. एज लॉन्ग एज ये मैग्नेट लूप की तरफ मूव कर रहा है, इसमें करंट फ्लो करेगा, और जब मैग्नेट रेस्ट पे होगा तो करंट विल बी ज़ीरो. एक दूसरा केस है, अब मान लो मैग्नेट रेस्ट पे है एंड लूप इज मूविंग टुवर्ड द मैग्नेट. मैग्नेट इज दैट रेस्ट एंड लूप इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो जब लूप मैग्नेट की तरफ मूव करेगी, इवन देन इंड्यूस्ड EMF विल बी सेटअप, बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स. कि चाहे मैग्नेट पास जाएगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, अगर लूप पास आएगी तो भी फ्लक्स चेंज होगा. इन बोथ द केसेस इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप इन द लूप. उसने कहा कि ये बार मैग्नेट है, इज टेकन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2. इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट टू. द बार मैग्नेट इज टेकन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 with speed v1, and in the case 2 it is taken from 1 to 2 with speed v2. Speed v2 is more than v1. If speed is greater, if speed is more, what does this imply? कि उसका जो टाइम है उसका कम हो जाएगा. इट विल टेक लेस टाइम इन केस 2. ये मेरा केस 2 है, ये मेरा केस 1. सो टाइम टेकन इन केस 2 विल बी लेस. यू कैन चेंज द सिंबल. यहाँ पर आप तो चाहो तो सिंबल चेंज कर लो. यू कैन यूज द सिंबल इन रोमन लेटर्स. क्लियर एवरीबॉडी? तो हमने कहा कि in both the cases the magnet is taken from position 1 to position 2. If I increase the speed, the time will decrease. And Faraday said, so and what do we notice? He noticed that when the speed is increased, the magnitude of current has increased. Here the current flowing is less, here current flowing is more. With increase in speed, the magnitude of current flowing in the loop also increases. The question, why the current is increasing? He explained that there is a rate of change of flux has increased. What is the rate of change of flux? It is the change in flux divided by the time interval. Change in flux divided by the time interval. So speed in case 2 is more in speed in case 1. So with increase of speed, so what is the rate of change of flux? It is the change in flux divided by the time interval. If I increase the speed, so the time is decreasing. So if time will decrease,
delta phi by delta t will increase and EMF will increase. So he gave us two laws. In first law he said induced EMF is set up whenever there is change in magnetic flux. In second law he said that magnitude of EMF, induced EMF, depend upon rate of change of flux. Not depends, is directly proportional to rate of change of flux. If rate of change of flux is more, EMF is more. Rate of change of flux is less, EMF is less. So what is Faraday's second law of EMI? The magnitude of induced EMF set up in the circuit or loop is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linked with circuit or loop. If I write it mathematically, E is directly proportional to d phi b by dt. E equals some constant into d phi by dt, where this constant is equal to 1 in SI units, implies E equals d phi b by dt. The magnitude of induced EMF equals d phi b by dt. And if you get a question, find dimension of magnetic flux, उसका बड़ा सिंपल सा उसका रिजल्ट है. According to Faraday's laws, what is the magnitude of EMF? E is d phi b by dt. Implies what is d phi b? E into dt. Implies what is dimension of d phi b? Is equal to dimension of E dt. You can write it as, now EMF, it has dimension m L square t minus 3 a minus 1, and the dimension of time is t. So what is the dimension of flux? m1 L square, so minus 3 or plus 1 is minus 2 a minus 1. These are the dimension of flux. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस रिजल्ट. अब देखो जो Faraday's laws हैं, दे ओनली टोल्ड अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF. सेकेंड लॉ से क्या पता चलता है EMF का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और फर्स्ट लॉ से क्या पता चलता है EMF कब सेटअप होगी. EMF कब सेटअप होगी? जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली चेंज होगा. तो फैराडे का जो अगर फर्स्ट लॉ बता रहा है EMF कब सेटअप हो रही है, EMF कब सेटअप होती है, जब फ्लक्स चेंज होता है. सेकेंड लॉ से क्या पता चलता है EMF का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. द Faraday's laws do not tell us anything about the direction of EMF. The direction of EMF was given by Lenz law. According to Lenz law, the direction of induced EMF is such that it opposes the cause which tends to produce it. The direction of induced EMF is such that it opposes the cause which tends to produce it.
और अगर हम एक्चुअली फेरेडे लॉ को इंक्लूड करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. वी हैव टू पुट ए नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज ईएमएफ इज अपोजिंग द कॉज विच टेंड्स टू प्रोड्यूस इट. यू कैन द प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अपोजेस द कॉज. इसका मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड द मीनिंग आई एम टेकिंग अ फ्यू एग्जांपल्स. एक एग्जांपल 1 ले रहे हैं हम. एक हमने लूप ले लिए और एक हमने बार मैग्नेट ले लिया. ओके, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है. नो बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द लूप. बार मैग्नेट लूप को अप्रोच कर रहा है. इट इज टेकन टुवर्ड्स द लूप. ओके, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ, व्हाई ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड? उसका कॉज क्या है? इट मोशन ऑफ द मैग्नेट. कि मैग्नेट जा रहा है आगे की तरफ, मैग्नेट मूव कर रहा है तो ईएमएफ सेटअप हो रही है. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ईएमएफ? इट इज द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट. तो जो इसकी ईएमएफ होगी वो बार मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगी. जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी, बार मैग्नेट की जो मोशन है उसको अपोज करेगी. तो अपोजिशन कैसे होगी? अगर मैग्नेट अप्रोच कर रहा है ईएमएफ उसको रिपेल करेगी. अपोजिशन कैसे होगी? अगर मैग्नेट उसके पास जा रहा है ईएमएफ उसको रिपेल करेगी. तो रिपल्शन कब होगी? जब नॉर्थ पोल आगे जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप हो जाए? नॉर्थ. तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. मीन्स करंट एंटी क्लॉकवाइज. अगर यहाँ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा. यानी बेसिकली जब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, लूप ने उसको रिपेल करना है, तो लूप की कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी? सिमिलर पोलैरिटी. अपोजेस द कॉज. मैं फिर समझा रहा हूँ. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिंग द कॉज. कॉज क्या है? जो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है. ईएमएफ को क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बार मैग्नेट की इसकी मोशन. अगर बार मैग्नेट इसके पास जाता है उसकी मोशन की वजह से ईएमएफ सेटअप हो रही है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसकी मोशन अपोज हो, जो कॉज है वो अपोज हो. तो कॉज अपोज कब होगा? जब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो इसके फेस पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? नॉर्थ पोलैरिटी. अब इसका ये आपका केस 2 है. इसमें नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा था तो लूप उसको रिपेल करेगी. तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी? तो नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा. यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी? नॉर्थ. और नॉर्थ पोलैरिटी कब आती है? व्हेन करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज. इसका मीनिंग है अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, अगर उसको उसका कौन सा फेस दिखाई देगा? राइट वाला. तो करंट किस डायरेक्शन में दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर सेम ऑब्जर्वर लेफ्ट पे चला जाता तो उसको कौन सा फेस दिखाई देता? इसका पीछे वाला. और करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देती? उसको क्लॉकवाइज. तो आई हैव रिटन हियर एंटी क्लॉकवाइज. मतलब राइट पे देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है. अगर यहाँ पर क्या लिखा है? क्लॉकवाइज. क्योंकि 2 फेस होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला. अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो पीछे क्या होगा? क्लॉकवाइज. अब ये नॉर्थ पोल जो है इस मैग्नेट का इससे दूर जा रहा है. इट इज रिसीडिंग अवे. अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अपोजेस द कॉज. तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है. तो अब क्या कर रहा है? दूर जा रहा है. ये पास आ रहा था तो उसको रिपल्शन मिल रही थी. तो दूर जाएगा तो उसको अपोज कैसे करेगा? अट्रैक्ट करेगा. अगली अट्रैक्शन कब होगी? जब नॉर्थ पोल को कौन सा पोल अट्रैक्ट करता है? साउथ. तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी? साउथ. तो मैंने एस पर साउथ बना दिया. उसी डायरेक्शन में एरो डाले तो करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? क्लॉकवाइज. पीछे क्या डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉक. यहाँ पर साउथ पोल होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा. अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है, उसको कौन सा
इसका फेस दिखाई देगा, उसको डायरेक्शन क्या दिखाई देगी, क्लॉकवाइज। और अगर ये सेम ऑब्जर्वर इस तरफ होता तो डायरेक्शन क्या दिखाई देती, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कहते हैं कि साउथ पोल अप्रोच कर रहा है। अब कौन सा पोल अप्रोच कर रहा है, साउथ। अगर साउथ पोल अप्रोच करेगा, अगर यहाँ पर अगली साउथ पोल अप्रोच करेगा, तो जब भी मैग्नेट अप्रोच करेगा लूप उसको रिपेल करेगी। तो कौन सा पोल अप्रोच कर रहा है, साउथ। तो रिपल्शन कब होगी, जब यहाँ पर साउथ पोलैरिटी आएगी। साउथ पोलैरिटी कब आएगी, जब करंट क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे वाला फेस ये आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, जो फ्रंट फेस और बैक फेस अरे नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसको। फिर आएगा हमारे पास साउथ पोल इज रिसीडिंग अवे। अब क्या होगा बेटे, अगर साउथ पोल दूर जाएगा तो क्या होगा, इसमें डायरेक्शन क्या होगी। अब ये साउथ पोल है, अब इसमें लूप अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्शन कब होगी, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा। यहाँ पे अगर आपका नॉर्थ आ गया तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा फेस क्लॉकवाइज है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, यहाँ से। ये एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, उसका इसका राइट का फेस दिखाई देगा, उसको डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और ये वाला कौन सा होगा, साउथ। अब ये करंट कैरिंग लूप इसको अप्रोच कर रही है, तो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्या फाइंड करना है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये लूप जब अप्रोच कर रही है, ये लूप क्या है, एक नॉर्थ और साउथ पोल ही है, और क्या है। इस लूप के अप्रोच करने का मतलब है कि साउथ पोल इसको अप्रोच कर रहा है। जब साउथ पोल अप्रोच कर रहा है तो ये वाली जो लूप है इसको रिपेल करेगी ना, ये लूप इसको रिपल्शन ऑफर करेगी। तो यहाँ पर अगली रिपल्शन कब आएगी, जब यहाँ पे साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। और साउथ पोलैरिटी कब होगी, जब करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। एनी डाउट अबाउट इट। अब देखो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को इसका राइट वाला फेस दिखाई दे रहा है, उसमें करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और ऑब्जर्वर को इसका भी राइट वाला फेस दिखाई देगा, उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा कि इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज था, जब इसने अप्रोच किया तो इसमें करंट कैसे इंड्यूस हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें करंट कैसे था बेटे, एंटी क्लॉकवाइज। लूप अप्रोच कर रही है तो साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे साउथ पोलैरिटी आ जाएगी तो करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। मीन्स व्हेन द लूप्स अप्रोच, जब भी लूप अप्रोच करती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंड्यूसेस करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटे यहाँ देखो, ये सेम लूप है, इट इज़ कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट नाउ इट इज़ रिसीडिंग अवे। ये लूप इससे दूर जा रही है, ओके। अगर लूप रिसीड कर रही है तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। साउथ पोल इज रिसीडिंग अवे, इस लूप के लिए साउथ पोल दूर जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी, अब ये लूप इसको अट्रैक्ट करेगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, इसमें कौन सा फेस डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या होगा, अरे क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। अगर मैं यानी इस ऑब्जर्वर को इसका कौन सा फेस दिखाई देगा, इसका राइट वाला।
इसका मीनिंग क्या है? इधर लूप इज रिसीडिंग अवे, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। एंटी क्लॉकवाइज क्या इंड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इफ अप्रोचिंग, एंटी क्लॉकवाइज क्या इंड्यूस कर रहा है? इंड्यूसिंग क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर आ जाओ। ऑब्जर्वर ने यहाँ नोटिस किया कि ये करंट इन द लूप इज फ्लोइंग इन, ऑब्जर्वर ने क्या नोटिस किया? इस लूप में करंट क्या फ्लो कर रहा है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फेस साउथ पोल होगा और ये क्या होगा? फेस नॉर्थ पोल होगा। अब ये लूप इसको अप्रोच कर रही है, तो कौन सा पोल इसको अप्रोच कर रहा है? नॉर्थ। यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी? नॉर्थ पोलैरिटी। तो करंट किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर क्या बेटे? ये क्लॉकवाइज। अब इस ऑब्जर्वर के लिए क्या रूल आ रहा है? उसको इसका राइट फेस दिखाई दे रहा है और इसका भी राइट दिखाई दे रहा है। वो क्या नोटिस कर रहा है? लूप कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अप्रोचिंग, इंड्यूस करंट इज सेटअप इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी अप्रोच होगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? द लूप कैरी करंट इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, एंड इज रिसीडिंग अवे। सो दिस फेस इज साउथ पोल, दिस फेस इज नॉर्थ पोल। सो विच पोल इज रिसीडिंग अवे? नॉर्थ। तो ये लूप इसको अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्शन कब होगी? जब यहाँ पे साउथ पोल होगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास एक रूल आ गया जो हमने याद रखना है कि इफ लूप इज रिसीडिंग अवे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम। इफ अप्रोचिंग तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ लिखा नोट इफ लूप अप्रोचेस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑपोजिट टू सोर्स लूप। ये मेरी सोर्स लूप है ग्रीन कलर वाली। इफ लूप इज रिसीडिंग अवे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सेम एज सोर्स लूप। इसमें हमारे पास दो लूप्स हैं। ये जो दोनों लूप से करंट फ्लो कर रहा है, सो बोथ द लूप्स आर यू कैन कैरिंग करंट। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को इसका राइट फेस दिखाई दे रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। और इसके राइट फेस पे करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। सो बोथ द लूप्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। दे अप्रोच ईच अदर, दोनों अप्रोच कर रही हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, अभी हमने एक रूल किया, अगर लूप्स अप्रोच करती हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जब भी लूप अप्रोच करती है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है बेटे? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो इंड्यूस होगा, इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो कैसे फ्लो करेगा? इट विल बी क्लॉकवाइज। ये वाली लूप इसमें करंट इंड्यूस करेगी और ये वाली लूप इसमें करंट इंड्यूस करेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे इंड्यूस कर देगी? क्लॉकवाइज। अब इस लूप में कितने करंट फ्लो कर रहे हैं? 2 करंट्स आर फ्लोइंग। एक तो ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, वो एंटी क्लॉकवाइज था। जो इंड्यूस हुआ है वो कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आता है, 2 लूप्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर, तो व्हाट विल हैपन? आंसर क्या? करंट विल डिक्रीज। Now both the loops are, you can say, carrying current in the same direction again. Now they are receding away. They are really receding away. तो एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप इफ दे आर रिसीडिंग अवे, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अगर ये लूप राइट पे जा रही है और ये लूप आपकी लेफ्ट पे जा रही है, तो इफ दे आर रिसीडिंग अवे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होती है। एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट कैसे इंड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज इसमें कैसे इंड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, द करंट इंक्रीजेस। नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है और ये करंट
आपका क्लॉकवाइज। लूप्स कैरिंग करंट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, लूप्स आर कैरिंग करंट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे अप्रोच ईच अदर। ओके, हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि जब भी अप्रोच होगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब भी अप्रोच होगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विद इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज है। इंड्यूस करंट हमेशा ऑपोजिट होगा। अब इसमें करंट कैसे जा रहा है बेटे? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसे जा रहा है? इस क्लॉकवाइज। अब दोनों अप्रोच कर रही हैं। क्या कर रही है? दोनों अप्रोच कर रही हैं। अप्रोच में ये एंटी क्लॉकवाइज जो करंट इंड्यूस करेगा वो ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट कैसे इंड्यूस कर देगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज इसमें करंट कैसे इंड्यूस कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों करंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, करंट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? इसमें दोनों लूप्स हैं, दे कैरी करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इनमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इफ दे कैरी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, इसमें क्या आ रहा है? इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। नो, दे आर रिसीडिंग अवे, दोनों दूर दूर जा रही हैं। इंड्यूस करंट का रूल क्या है? अगर लूप्स रिसीड करती हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होती। एंटी क्लॉकवाइज कैसे इंड्यूस कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज क्या इंड्यूस करेगा? अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? ये क्लॉकवाइज एंटी अपोजिट होगी ना, करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको नोट कर लो। ये एक लूप है। इट इज़ ए यू कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरी करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। इट इज़ टेकन टुवर्ड द राइट। इसको हम राइट पे लेके जा रहे हैं। ओके, इससे दूर लेके जा रहे हैं। हमारे पास रूल क्या है? अगर उसको दूर लेके जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। इस रेक्टेंगुलर लूप को करंट कैरिंग कंडक्टर से हम दूर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये कंडक्टर उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअली अट्रैक्शन कब होती है? हमारे पास रूल है कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। अगर मैं रेक्टेंगुलर लूप को राइट पे लेके जाऊंगा तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टर इसकी मोशन को अपोज करेगा। एज इट इज़ टेकन अवे तो अपोजिशन कब आएगी? जब अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन कब होती है? व्हेन द टू कंडक्टर कैरी करंट इन दी सेम डायरेक्शन। सो करंट कैसे फ्लो करेगा? इट विल फ्लो क्लॉकवाइज। अब ये लूप को हम इसके पास लेके जा रहे हैं। द लूप इज टेकन टुवर्ड्स द कंडक्टर। व्हेन टेकन टुवर्ड्स तो क्या होगा? तो रिपल्शन ऑफर होगी। तो रिपल्शन कब होती है? व्हेन करंट फ्लोज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस करंट कहाँ पे फ्लो करेगा? नीचे की तरफ। एक हमारे पास ये रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। देखो ये डॉट क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल है। क्या इम्प्लाई कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? आउटवर्ड नॉर्मल है। ये लूप 1 है, इट इज़ टेकन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। दिस लूप 2 इज टेकन आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लूप 1 को कहाँ लेके आ रहे हैं? वी आर ब्रिंगिंग इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये जो लूप 2 है इट्स टेकन आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ रहे हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके,
जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड लेके आऊँगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। क्या होता है फ्लक्स, बी इंटू ए। So when it is entering into the field, its area inside the field will keep on increasing. Actually, initially you can say only very less area is in the field. When it enters, the area inside the field will increase. With increase of area, what will happen? Flux will increase. It's clear to everybody? So when loop 1 is taken into the field, area of the loop in the field is increasing. What is flux? B into A. Flux is increasing. According to Lenz's law, induced EMF opposes the cause. If flux is increasing, induced EMF अगर tries to decrease flux, flux increase हो रहा है तो EMF क्या करेगी flux को, उसको decrease करेगी. अब एक्चुअली फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, बी और ए पे. एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स कैसे डिक्रीज हो सकता है, जब बी कम हो जाए. एवरीबॉडी क्लियर? मैंने कहा द लूप इज पुल्ड इनटू द फील्ड, एरिया इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. फ्लक्स इंक्रीज हो, अब ईएमएफ क्या करेगी, इट ट्राइज टू डिक्रीज फ्लक्स. फ्लक्स कैसे डिक्रीज करेगी कि जब इंड्यूस करंट फ्लो करेगा उससे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो अगर वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड फील्ड, ये जो अप्लाइड फील्ड आउटवर्ड है, अगर उसके ऑपोजिट होगा तो फ्लक्स क्या, तो फील्ड डिक्रीज हो जाएगा. इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो मैंने कहा इस लूप के इनसाइड आने से एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राइज टू डिक्रीज फ्लक्स, तो क्या होगा, बी इंड्यूस इज ऑपोजिट टू बी अप्लाइड. बी अप्लाइड कहाँ पर है, आउटवर्ड है, तो बी इंड्यूस कहाँ पर होगा, इनवर्ड. आई विल यूज राइट हैंड रूल. तो वेयर इज द थंब, इनवर्ड्स. तो इसमें इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज. क्लियर एवरीबॉडी? अब इसको मैं फील्ड से इनसाइड लेके जा रहा था, इसको फील्ड से कहाँ निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ. जब बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा. फ्लक्स बी इंटू ए है, थीटा 0 है, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज. अब ईएमएफ क्या करेगी, उसको इंक्रीज करेगी. इंक्रीज कैसे करेगी, अब इंड्यूस फील्ड अप्लाइड की सेम डायरेक्शन में होगा. अप्लाइड कहाँ पर है, आउटवर्ड है, इंड्यूस कहाँ पर होगा, आउटवर्ड. सो थंब ऑफ राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस फील्ड, तो कर्ल्ड फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज. अगर मैं लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करूंगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, 0. हमारे पास एक इरेगुलर शेप की प्लेनर लूप है. इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कल. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. हमारे पास एक बड़े थ्योरम है कि फॉर ए गिवन लेंथ एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम. तो किसी भी प्लेनर लूप को अगर आप एक्चुअली सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा. तो जब मैं इसको सर्कल में कन्वर्ट करूं, अगर इसकी जगह लूप आपकी स्क्वायर होती, उसको सर्कल में कन्वर्ट करता, रेक्टेंगल को सर्कल में कन्वर्ट करता, तो एरिया इंक्रीज हो जाता. क्लियर? एरिया सर्कल का मैक्सिमम होता है. एरिया इंक्रीज होने का मतलब है फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, उसको डिक्रीज करेगी, उसको कम करेगी. तो कैसे कम करेगी कि इंड्यूस फील्ड अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट होगा. अप्लाइड आउटवर्ड है, इंड्यूस कहाँ पर होगा, इनवर्ड. अगर इंड्यूस इनवर्ड है तो कर्ल्ड फिंगर्स कैसे जा रही हैं, क्लॉकवाइज. यू टू प्रूव दैट लेंस लॉ ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसको मैंने कैसे प्रूव किया, एक मैंने लूप ली और एक मैंने बार मैग्नेट लिया. व्हेन द बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स अ लूप, तो यहाँ पर ये लूप क्या करती है, ये मैग्नेट की मोशन को अपोज करती है. ये लूप मैग्नेट को रिपेल कर रही है.
ओके, अब इस मैग्नेट को आगे लेके जाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कहाँ लगाएगा? आगे की तरफ। मीन्स एक्सटर्नल एजेंट इज डूइंग सम वर्क, external agent is doing some work. So this work done by external agent is converted into the electrical energy. Again I am repeating, एक loop है, एक बार मैग्नेट लिया, we have to prove that Lenz's law of a conservation of energy. So if the bar magnet is taken towards the loop, बार मैग्नेट जब लूप के पास जाएगा तो फेस ऑफ द लूप फेसिंग द मैग्नेट डेवलप्स सिमिलर पोलैरिटी। तो नॉर्थ पोल आगे जा रहा है तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी? नॉर्थ। ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, मतलब इस मैग्नेट को आगे नहीं आने देगा। तो मैग्नेट को आगे लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू अप्लाई फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू डू सम वर्क। दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो लेंज लॉ ओबे principle of the conservation of electrical energy.